Today I am going to present the climate chapter, in which firstly we discuss about the difference between the weather and the climate, culture, human settlement and environmental changes which deals with such problems. Temperature plays an important role, most important role in the climate, or in which the temperature was determined from the radiation of the earth, radiation, direct heat from the sun, and solar radiation is the amount of heat that is received by the earth, in which the heat transfer into three ways: conduction, convection and advection. Conduction, in which the heat transfer from the one body to another body until the both body has the same temperature, in which the heat was transferred into land and air. And convection is the warm and rising upward of the direction. इसके अंदर जो होता है वो जो लैंड जब ज्यादा हीटेड हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और जो एयर होती है, एयर का अपवर्ड सर्कुलेशन होता है, उसकी वजह से वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है उसके, और फिर ये कन्वेक्शन के थ्रू ये हो जाता है. Advection is horizontal movement of the air, in which it passes from the due to the uneven heating of the earth from low pressure to high pressure. India's monsoon is the seasonal reversal of wind, in which for the 6 month it is the southwest monsoon which determines the India's climate, and another for the 6 month it is determined from the northeast monsoon. Factors that related with the location reliefs are the latitude, Himalaya, distribution of land and water, and distance from the sea, altitude and relief. Latitudes, firstly we see the latitudes. Latitudes are the imaginary line which is drawn on the earth parallel to the equator, and divides the earth into the basically roughly three parts: torrid zone, temperate zone and frigid zone. Torrid zone receives the large amount of heat, that's why it gets hot and humid type of climate, and it is about 0 to 23 half degree both north and south. And temperate is receives the slant rays of the sun, that's why it's contain the moderate type of climate. And frigid zone receive the lesser what we can say, lesser amount of heat, which is called known as the cold. That's why it receives the lesser heat. That's why it is a cold type of climate. And India passes through the Tropic of Cancer divides the India into two parts, which is in the temperate zone and torrid zone. Torrid zone has, as we all know, that it has the humid type of climate, but in India has the here we see the moderate type of climate, but here we see the extreme climate because of the distance from the sea. This factors works here more effective. एल्टीट्यूड जो होता है, जिससे हाइट बढ़ रही है, हमारे 6.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हो रहा है. जैसे कि अगर आगरा और दार्जिलिंग देखें, हम सेम लैटिट्यूड्स पे लाई करता है, बट इनका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है क्योंकि जो एल्टीट्यूड है दार्जिलिंग का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू आगरा. अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी बहुत अफेक्ट करता है. अगर सी के पास में है तो फिर मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट रहेगा, और अगर सी से दूर है तो यहाँ पे एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा. और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलता है. डे टाइम में हमारे पास लैंड ब्रिज चलता है एंड नाइट में लैंड ब्रिज चलता है. अगर हम लोग एग्जांपल लें, जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक वार्म करंट है, और जो यूरोप के जो सराउंडिंग वाले रीजन है उन्हें वो वार्म करती है, वहां पे हीट ट्रांसफर करती है. जेट स्ट्रीम इंडिया के क्लाइमेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है बेसिकली जो विंटर्स में या फिर समर में, वो से काफी ज्यादा इफेक्टेड होती है. सबसे पहले जो सब ट्रॉपिकल स्पेशलिटीज होती है, तो यहाँ पे इंडिया के यहाँ से पास होती है, जिसकी वजह से जो मेडिटेरेनियन सी का जो क्लाइमेट होता है, वो मेडिटेरेनियन सी में जो साइक्लोन्स आ रहे होते हैं वो यहाँ पे जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से जो विंटर में जो बारिश हो रही होती है वो यहाँ पे होती है. बट इन समर में क्या होता है, यहाँ पे ये वाला एरिया बेल्ट बनाता है, और ये वेस्टर्लीज जो होती है अपर एयर सर्कुलेशन विंड का होता है, तो जिसकी वजह से जब यहाँ की एयर गर्म हुई तो ये ऊपर राइज करेगी, उसकी वजह से ये वाली जो बेल्ट है ऊपर शिफ्ट हो जाती है. तो यहाँ पे ये वाली बेल्ट का तो रोल खत्म हो गया. फिर यहाँ पे जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली साइक्लोन स्ट्रीम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जो इंडिया के जो समर में जो मानसून होता है वो इसी वजह से बूस्ट करता है बेसिकली. साउथ वेस्ट मानसून के अंदर अगर हम देखें तो 65% ऑफ वाटर जो आता है हमारे इंडिया में वो अरेबियन सी ब्रांच से आता है, और 35% वाटर जो आता है वो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से आता है. अब अगर 65% जो वाटर आता है वो यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे क्लाउड बस्ट होता है केरल के साइड में 1 जुलाई के टाइम पे,
एंड यहाँ पे जब केरल में क्लाउड बर्स्ट होता है, फिर यहाँ से जो ये यहाँ पे 4 डिवीजन होते हैं, एक तो यहाँ पे ये वाला हो गया, एक ये मुंबई वाला, और यहाँ से एक विंध्याचल के जो पैरेलल चली जाती है वो रेंज, और एक यहाँ से जो अरावली के लिए रेंज आती है वो। अब ये वाले तो यहाँ पे वेस्टर्न, यहाँ पे तो बारिश कर दी, यहाँ पे तो हो गया, और फिर यहाँ पे यहाँ पे जो है पोल घाट है, पोल घाट के यहाँ पे इससे जो ये पास बना हुआ है, यहाँ से जो यहाँ पे जो विंड्स होती है यहाँ से इसके अंदर घुस जाती है और वेस्टर्न ईस्टर्न साइड ऑफ तमिलनाडु में बारिश कराती है। और सेकेंडली मुंबई के अंदर जो होता है, मुंबई वाली बात से यहाँ से मुंबई वाली रेंज चली आती है, और यहाँ से ये विध्यांचल विध्यांस और सतपुड़ा के जो पैरेलल जाती है वो रेंज चली आती है, और यहाँ पे अमरकंटक में ये वाली बे ऑफ बंगाल वाली रेंज और यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे काफी ज्यादा दोनों कन्वर्ज होती है, उसकी वजह से यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं, और साथ में रेनफॉल काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे गिरनार हिल्स हैं जिसकी वजह से यहाँ से कच्छ है, यहाँ पे कच्छ से यहाँ से वाटर लेती है जो एयर्स है, और फिर यहाँ से पैरेलल फ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है बारिश नहीं हो पाती है, और ये अब में जाके पंजाब प्लेन्स में जाके ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच जो मिलती है और यहाँ पे बारिश कराती है। अब बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो आराकान योमाना से टकराती है, टकराने के बाद ये यहाँ पे 3-4 डिवीजन होते हैं। पहले तो ये वाला एक तो असम की साइड जाएगा, फिर एक डिवीजन यहाँ से ये टकराकर ये यहाँ पे चला जाएगा, ये गारो खासी जयंतिया में बारिश कराएगा, और दूसरा डिवीजन होगा वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से जाके यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू जो बहुत ज्यादा हीटअप होता है, जिसकी यहाँ पे थंडरस्टॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। और एक यहाँ पे महानदी का डेल्टा है, यहाँ से भी एक विंग्स क्रॉस होती है, यहाँ पे जाके ज्वाइन कर देती है। तो ये इंडिया का मानसून टाइप का ट्रेंड है। अब उसकी वजह से उसी के हिसाब से अब यहाँ पे विंड्स का डायरेक्शन उसी तरीके से प्रेसिपिटेशन हमको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हमें वेस्ट बंगाल और ये बंगाल वाली साइड देखने को मिलता है, और हिमालय वाली साइड देखने को मिलता है। फिर नॉर्मल 200 to 240 यहाँ पे फिर जैसे इस साइड हम जाते हैं वैसे हमें प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलता है, इस साइड जाते हैं वैसे प्रेसिपिटेशन सबसे कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे जैसलमेर सबसे कम बारिश होती है, और यहाँ पे जो है चिरापुंजी सबसे ज्यादा बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से यहाँ पे जो रेंज आ रही होती है वो यहाँ पे आगे तमिलनाडु के साइड आती हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु के साइड ज्यादा बारिश होती है कि ये वाला रीजन ज्यादा बारिश यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल के साइड से जो वाटर लेता है यहाँ पे तमिलनाडु वाली साइड बारिश हो जाती है। अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है वो जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से फॉर्मेशन होता है। जब इंडिया के बे ऑफ बंगाल वाली साइड जब यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है, तब ये वार्म होता है, और जिसके अंदर टेम्परेचर चाहिए होता है सी को 26 to 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो वार्म एयर होती है वो राइज होती है। फिर उसकी वजह से जब ट्रेन के थ्रू ये वार्म एयर राइज होती है, ऊपर जाकर ये कंडेंस होती है, और ऊपर जाकर ये लेटेंट हीट को रिलीज करती है, जो कि इंटेंसिफाई करती है साइक्लोन को। और रोटेशन जो होता है इसका वो कोरिलेशन फोर्स की वजह से ड्रिवन होता है, इसलिए ये रोटेट करता है, और इसके अंदर जो है आई का फॉर्मेशन होता है जो कि काम एरिया होता है एज कम्पेयर टू, और यहाँ पे आई वॉल्स बनाई जाती है, और इसकी वजह से इनका साइक्लोन का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होता है। और इसके अंदर यहाँ पे वार्म करंट होता है, और ये जब वार्म करंट ऊपर जा रहा है ये पूरा ऊपर जाके स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होने के बाद में फिर ये जो है ये वापस नीचे आता है, क्योंकि ये ऊपर जाके वार्म करंट जब ठंडा हो जाता है लेटेंट हीट को रिलीज कर देता है, ठंडा होता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। तो इस वजह से हमें वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो इंडिया के अंदर हर तरीके कोपेन के हिसाब से हर तरीके का वेजिटेशन स्पान हमें देखने को मिलता है। AMU जो है द मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है विद द शॉर्ट ड्राई सीजन, जो कि हमें देखने को मिलता है बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कांस्टेंट रेन कराता है, हाई हीटेड जोन होता है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, और जो इसका रीजन है केरल और कर्नाटक कोस्ट पे होता है। अब क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं थोड़े बहुत, और उसकी वजह से 2023 में जो 23 और 24 के अंदर जो है हमें हॉटेस्ट ईयर देखने को मिला है, जिसके अंदर जो टेम्परेचर है 1.48 डिग्री तक हम लोग को देखने को मिला है अब, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन हाउस एमिशंस काफी ज्यादा हुआ है, एलिनो का इफेक्ट काफी ज्यादा देखने को मिला, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी काफी ज्यादा देखने को मिली थी। और ग्लोबल एग्रीमेंट हमारे पास 2 साइन हुए जिसमें पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल है। ग्लोबल पेरिस एग्रीमेंट के अंदर लिमिट सेट कर दी गई थी, और इसके अंदर जो है कि
ट्रीटीज इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था और कंट्रीज सबमिटेड। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस ये था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर सब कंट्रियां को एक टारगेट मिलता था, बट पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सब कंट्रियां इंडिपेंडेंट हैं कि वो अपना टारगेट खुद सेट करती हैं और इसकी वजह से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होता है। और अगर हम लोग देखें तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से यूरोप के अंदर हीट वेव जनरेट होती हैं, कनाडा के अंदर हमको वाइल्ड फायर देखने को मिली है, चाइना के अंदर फ्लड देखने को मिला और एंटार्क्टिक रीजन से आइस की मेल्टिंग हो रही है। इंडिया का जो टारगेट रहा है एनडीसी के अंदर जो 2070 तक का जीरो तक का रहा है, जीरो तक का हम लोग सोचा है। रिड्यूस इमिशन इंटेंसिफाई जो करेंगे हम लोग कार्बन एमिशंस वो रिड्यूस करेंगे 45% बाय 2030 तक, और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करेंगे जिसके अंदर ट्रिपल करेंगे 2030 तक। इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा हीट वेव जनरेट हुई है यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, और जिसके जो कॉजेज हैं वो क्लाइमेट के और अर्बन जो हीट इंसिडेंट इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और फ्लडिंग देखने को मिली है ज्यादातर, और मानसून का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ है जिसकी वजह से अर्बन फ्लड्स देखने मिले हमें बैंगलोर और हिमाचल में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे पास एक कॉर्पोरेशन साइन की जिसके अंदर फ्रांस के साथ साइन की, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और जो कि सोलर अलायंस को प्रमोट करेगा और ट्रॉपिकल कंट्रीज के साथ में। लाइफ मिशन जो है वो 2003 में लॉन्च हुआ था, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर रिड्यूस करेंगे प्लास्टिक को, सेव करेंगे वाटर को, अब यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे और सस्टेनेबल यूज करेंगे। फिर उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था जिसके अंदर लॉन्च किया गया है 2023 के अंदर, जिसका मेन गोल रहा है ग्लोबल हब को और द ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इन्वेंट करना। फिर स्टील का नॉर्मल सा वही है, बट ये इंपॉर्टेंट है 3 मिलियन टन हाइड्रोजन एनुअली जो हम प्रोड्यूस करें उसको है। और इंडिया का जो कूलिंग है वही है। COP30 जो है, COP30 साइन हुआ है इंडिया के अंदर 2025 के अंदर। 1917 के टाइम पे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद में 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की गई, फिर उसके बाद काफी सारी मीटिंग्स हुई, सबसे अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है COP30 की हुई है जिसके अंदर ब्राजील का है वहाँ पे रहा है। और अमेजोन रीजन जो है वो बेसिकली एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए रहा है क्योंकि वो लंग्स है अर्थ की और इसकी आइडेंटिफाई करता है कि हमें प्रोटेक्शन करनी है इन रीजन की। इसका जो मेन क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें क्लाइमेट फाइनेंसिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रॉन्ग एनडीसी कमिटी है, प्रोटेक्शन करना है फॉरेस्ट को और इम्प्लीमेंटेशन करना है पेरिस एग्रीमेंट में जो सोचा गया है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। Almost all, taking from climate change, heating, heat budget, southeast monsoon, decrease of monsoon, heat zone, climate zone, role of Himalayan climate, intertropical zone, jet stream, Indian Ocean typhoon, cyclones, including all kinds of topics, right? So it is a surprisingly, you can say it's a very nice presentation. So there are certain questions which needs to clarify from both sides. Already you have shown that the climate change the latest environmental issues. Then secondly, discuss about the heating of the earth, convection. So kindly elaborate this the heat process, heat budget, and the relation with the solar energies. So there is a focus on the solar energy converting to the electrical energy. Does this heat budget will be disrupted, and if it is so, then what would be the consequences? जो हीट बजट तो ऑफकोर्स डिस्टर्ब हो गई, और जो हीट जो सन से आ रही है वो तो उतनी ही आएगी, बट जो हम लोग यूज करेंगे उसका ज्यादा यूज करेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू जो हीट वापस जा रही होती है जो कि एटमॉस्फेयर को वार्म कर रही होती है, उसमें अफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, और जो उसकी वजह से जो अनबैलेंस होगा हीट का वो भी हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर।